Good morning, students. Myself Anurag Singh from Subra Singh Children Academy. Today I am here in front of you with the new topic, that is what? Conic section. In the last video, I have explained many part of the conic section in which we discussed about the circle and so on. And today I am going to solve the few questions of the circle which are related to the equation of circle and so on. Right now, in the last video, I was explained the equation of circle which can be find by if the center of circle and radius is given, and in the next question is I was explained if the equation of circle is given, then how can we find the radius and center of the given circle. Means मैंने आपको लास्ट क्लास में दो वीडियो सिखाया था. फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, then we have to find the equation of circle. But in the second video question, I was explained about if the equation of circle is given, then how can we find center and radius. And now today I am going to explain the new part of circle in which what is given, that is the question number 10. Question number 10. What is given? Question number 10. Find the equation of circle passing through point 4, 1 and 6, 5. 4, 1 and 6, 5, and whose center lies on the line 4x plus y is equal to 16. Look here beta. Question है, find the equation of circle. Find the equation of circle which passes through the point 4, 1 and 6, 5. Again मैं बोल रहा हूँ, equation of circle which passes through the point 4, 1 and 6, 5 and whose center lies on the line 4x plus y is equal to 16. Is that clear? अब अगर इस सम की सॉल्व करने की बात करेंगे बेटा हम लोग, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेट्रिकली सिखाता हूँ. देखो ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस? सर्कल. यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, दैट इज व्हाट 4, 1 एंड दैट इज द अदर पॉइंट दैट इज 6, 5. फ्रॉम दीज टू पॉइंट सर्कल इज पासेस राइट नाउ, एंड this is the center of circle, the line, this line, that is what 4x plus y is equal to 16 is passes through the center. assume कर लिया मैंने कि center का coordinate कितना है बेटा, h, k. clear? तो first of all अगर मैंने सर्कल का सेंटर एज्यूम कर लिया है h, k, तो सर्कल का सेंटर इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है, therefore h, k satisfy the given equation of circle. तो एज्यूम किया है बेटा हमने क्या, let center of circle be h, k since h, k lies on the line, therefore 4h plus k is equal to 16. yes or no? अब सेकेंड स्टेप, एक इक्वेशन मिल गया बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अगर मैं नेमिंग कर दूं, इसका एक नाम लिख दूं a, b and that is what o, then what is length of oa and ob? Same. Why they are same? Because the oa and ob are the radii of the same circle. तो वही हमारा इक्वेशन बनेगा, बट oa is equal to ob, रीजन radii of same circle, radii of same circle, right now. Therefore OA square is equal to OB square, OA square is equal to OB square. Therefore बेटा OA की लेंथ निकालना है हम लोगों को. क्या निकालना है? OA, यही है ना, that is h minus 4 the whole square plus k minus 1 the whole square, h minus 4 the whole square plus k minus 1 the whole square. और यहाँ पे OB निकालेंगे तो h minus 6 the whole square plus k minus 5 the whole square. दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, नॉर्मल सा पार्ट है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा. क्या बनेगा बेटा, h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k
प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25. Yes or no? H square, k square, h square, k square cancelled out. Then what are the remaining part? 8 minus 8h minus 2k plus 17. 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 is equal to minus 12h ना plus minus 10k again 36 plus 25 प्लस 61. एनी डाउट? ट्रांसफर ले लूँ बेटा इसको हम. माइनस 8h माइनस 2k प्लस 12h माइनस माइनस इधर आएगा बेटा प्लस 10k इज इक्वल टू 61 माइनस 17. एनी डाउट? यस और नो? अब जरा ध्यान दो बेटा, 8h और ये 12h मिलके क्या बनेगा? 4h. 2k प्लस 10k दैट इज व्हाट? 8k इज इक्वल टू 61 माइनस 17. 4 and 5 minus 1 4. That means h plus 2k is equal to 11. That is equation number 2. अब ध्यान दो बेटा, एक h और k में दो इक्वेशन मिल गए. दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ h एंड k विच इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 चलो तो काट लेंगे. क्या हुआ? क्या चाहिए था? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. बेटा इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 4h प्लस k is equal to 16 and here h plus 2k is equal to 11. बेटा दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे h की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं. देयरफॉर इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4h plus k is equal to 16. देयरफॉर 4h plus k is equal to 16 and 4h plus 8k is equal to 44. ट्रांसफर ले लो बेटा. सब्सट्रैक्शन करेंगे बेटा तो माइनस 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 दैट विल बी चेंज्ड. 8k माइनस k दैट इज माइनस 7k इज इक्वल टू अगेन माइनस 14 माइनस 6 8 3 minus 1 2 minus minus cancel. K is equal to 28 upon 7 4 ja. Therefore K is equal to 4. Yes na? Now substitute the value of K in equation 1. Substitute value of K in 1. What is given beta? 4h plus K. What is K? K is what? 4 is equal to 16. Therefore 4h is equal to 16 minus 4. 4h is equal to 16 minus 4 12. Therefore h is equal to 3. अभी h और k दोनों मिल चुके हैं बेटा, h and k. Therefore center of circle is equal to 3,4. बेटा एक चीज मिल चुकी है. क्या मिल गया? सेंटर ऑफ सर्कल. अब हमें क्या चाहिए? रेडियस. क्या चाहिए? रेडियस. बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास भी यही बोला था कि सेंटर और रेडियस दोनों में से कुछ भी निकालना हो, कुछ भी फाइंड आउट करना, सॉरी मैंने आपको बोला था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना हो तो यू नीड 2 थिंग्स, 1 सेंटर एंड सेकंड रेडियस. अब सेंटर मिल चुका है
उसके आगे के पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो सेंटर इज एच कॉमा के, जो अभी तक एच कॉमा के था वो चेंज होके अब कितना हो गया बेटा 3,4। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ OB या लेंथ ऑफ OA, दैट इज व्हाट रेडियस। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल OA इज इक्वल टू अंडर रूट, OA का ले लेते बेटा 4 minus 3 the whole square plus 1 minus 4 the whole square, that is equal to under root 4 minus 3 is what 1 square plus that is what minus 3 square is equal to under root 1 plus 9 is equal to under root 10, that is what our radius भी हो गया बेटा। I have center and radius both, therefore अब दोनों मिल चुके हैं तो तुरंत हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज x माइनस एच की इज व्हाट 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इज व्हाट 4 the whole square is equal to r square, that means root 10 the whole square। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बेटा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 10, रूट 10 स्क्वायर इज 10। ऑर्डर में अरेंज करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। अगेन हियर ट्रांसफर करेंगे माइनस 10 तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0, पूरा का पूरा ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? सबसे पहले क्या किया मैंने, पॉइंट्स को प्लॉट किया, सेंटर का कोऑर्डिनेट एज्यूम किया h कॉमा के, एंड देन क्या एज्यूम किया बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंस सेंटर लाइज ऑन द लाइन तो h कॉमा के को लाइन पे सेटिस्फाई करा दिया। अपने नोट्स देखते रहो तब समझ में आएगा। पॉइंट h कॉमा के को क्या किया हमने, सेंटर पे सेटिस्फाई करा दिया। जैसे ही सेंटर पे सेटिस्फाई कराया रिजल्ट क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद हमने क्या एज्यूम किया, OA इज इक्वल टू OB बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी गेट अनदर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब उसको हमने ना क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, वी विल गेट योर वैल्यू h एंड k। अभी h और k को क्या किया हमने बेटा, क्या किया h और k को OA में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें रेडियस मिल गया। जब सेंटर और रेडियस मिल गया तो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ सर्कल दैट इज x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वो फार्मूले से हमने क्या किया बेटा, सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। इज दैट क्लियर? हैव यू एनी डाउट? इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, शॉन, राइट ना। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर हमने 10 किया था, राइट ना। सेम रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 11 भी, बस क्या डिजिट्स का डिफरेंस है, तो दैट्स योर होमवर्क, आप खुद पे कर लेना घर पे, राइट ना। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, सब नंबर 12, रेडियस दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5, ऑलरेडी दे दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग आदमी है यार, रेडियस दे दिया। आगे, हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सेस एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2,3। क्लियर ना, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। अगर देखा जाए बेटा तो बेसिकली हम देखें, बात करेंगे ना तो मोस्ट काफ़ी कुछ मिलता जुलता सम है, ठीक है, काफ़ी कुछ क्या है, मिलता जुलता सम है, बट सॉल्व करने पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार हम आपको समझा देते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इट। दोनों सम्स में काफ़ी कुछ रिलेशंस है, सम नंबर 10 और सम नंबर 12 में। 11 तो सेम टू सेम वही है, बस डिजिट का प्रॉब्लम है, बट इन केस ऑफ सम नंबर 12 देर इज सम डिफरेंस, बट मैक्सिमम टाइप ऑफ 90% सिमिलरिटी है सम नंबर 10 एंड सम नंबर 12 में, ओके ना। सम नंबर 12 इज व्हाट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सम नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 5 centimeter and center lies on x axis and passes through the point 2,3. Look here, this is what axis, ये बनाया क्या हमने, एक सर्कल,
क्लियर? सेंटर है यहाँ पे, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स नॉट ऑन ओरिजिन, सॉरी, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये तो हो जाएगा बेटा ओरिजिन पे। क्लियर? चलो, दिस इज व्हाट एक्सिस, योर सर्कल इज हियर लाइक दिस, ओके, योर सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, clear, and it passes through the point 2, 3. Find the equation of circle with radius 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3 and center lies on x axis, that is a, 0. Yes or no? The distance between this, that means OA is equal to 5 unit. 5 unit. Clear? Then find the equation of circle. बेटा रेडियस दिया है, कुल मिला के हमारी रिक्वायरमेंट क्या है सेंटर की, सेंटर में इतना दे दिया कि इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, वो भी फिक्स हो गया। अब बचा क्या, ए, जिसको हमने एज्यूम किया है, अगर उसकी वैल्यू मिल जाए तो हमारा पूरा का पूरा सम सॉल्व होने में 1 मिनट का टाइम लगेगा, राइट ना। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे सोल्यूशन में, लेट सेंटर ऑफ द सर्कल बी a, 0। सेंटर कितना एज्यूम कर लिया बेटा हमने, a, 0 एज्यूम कर लिया। देयरफॉर OA इज इक्वल टू 5 रेडियस, राइट ना। OA मीन्स व्हाट, अंडर रूट OA, दैट इज a minus 2 the whole square, a minus 2 the whole square plus 0 minus 3 the whole square इज इक्वल टू 5 यूनिट। रूट हटा दे बेटा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही हम दोनों को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a minus 2 the whole square plus minus 3 square इज इक्वल टू 25। यस और नो? सिंप्लीफाई कर लो बेटा, a minus 2 the whole square को एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, a square minus 4a plus 4 plus a square minus 4a plus 4 plus minus 3 square, that is what, 9 is equal to 25। yes or no? 25 को शिफ्ट कर लेते हैं बेटा, a square minus 4a plus 13 is equal minus 25 is equal to 0। That means a square plus minus 4a, 25, 13, 12 होगा, that is minus 12 is equal to 0। Simplify it, फैक्टराइज करेंगे बेटा तो कितना आएगा, बोलो फटाफट बोलो, a square minus 6 2 जा 6a plus 2a minus 12 is equal to 0। yes or no? a कॉमन ले बेटा, a minus 6 plus 2 कॉमन ले लो, a minus 6 is equal to 0, that is a plus 2 and a minus 6 is equal to 0, a is equal to minus 2 and a is equal to 6। अगर बेटा मैं a की जगह पे minus 6 लेता हूँ तो रेडियस कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। a की वैल्यू है -2 एंड a की वैल्यू है 6, दो वैल्यूज हैं। अब दोनों में से तो करेक्ट हो नहीं सकता, बिकॉज एक पॉइंट दो जगह अगर रहेगा तो दोनों से पॉइंट 2, 3 का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज डिफरेंट आ सकता है, राइट ना। तो थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। a की जगह पे मैंने मान लिया 2, 6, 0 एंड दूसरा वाला क्या है बेटा, पॉइंट इज व्हाट 2, 3। रफ वर्क में चेक कर लेते हैं, अंडर रूट 6 minus 2 4 स्क्वायर प्लस 0 minus 3 3 minus 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज व्हाट 5। दूसरा चेक कर लेते हैं बेटा, -2, 0 पे -2 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, सेम आ रहा है, दोनों पे सेम आ रहा है, राइट ना। तो लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज -2, 0 एंड 6, 0। बेटा दो सेंटर हो चुके हैं, हाउ मेनी सेंटर्स वी हैव,
2 सेंटर्स। अब अगर सेंटर 2 हैं तो डेफिनेट सी बात है कि इक्वेशन भी कितने होंगे 2। तो केस 1 राइट ना। इफ सेंटर इज इक्वल टू -2, 0, सेंटर -2, 0 and radius is equal to 5, then equation of circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square, that is x minus h की वैल्यू बेटा +2 हो जाएगा, x +2 the whole square plus y minus k that means y minus 0 the whole square is equal to 5 square, radius is 5। Therefore ये इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। शिफ्टिंग कर लें बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। केस 2 when आंसर वही आएगा बेटा चाहे जिससे आप जाओगे, when सेंटर इज इक्वल टू 6, 0 and radius is equal to 5, therefore equation of circle right now x minus 6 the whole square plus y minus 0 the whole square is equal to 5 square। अगेन सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा, यू विल गेट योर नेक्स्ट रिजल्ट। ओके, इज दैट क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, देखो उसी से रिलेटेड डिस्टेंस फार्मूला से ही अप्लाई किया, डिस्टेंस फार्मूला से हमें आ गया राइट ना। तो बहुत टफ नहीं है बेटा, काफ़ी अच्छा पार्ट है और काफ़ी आसान सा पार्ट है, एंट्रेंस में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, जब आप उसमें जाओगे कहाँ पे, JEE के एग्ज़ाम में जाओगे या फिर JEE छोड़ो, अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम्स में जाते हो जहाँ पे मैथ्स आपके सिलेबस में है, तो वहाँ पे सर्कल या दैट मीन्स कोनिक सेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। कभी कभी आप देखो, अगर कोई बच्चा UP PCS का एग्ज़ाम देता है, PCS हो गया, आइए PCS में अगर आप मैथ लेते हो एज अ मेन सब्जेक्ट, तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर उसका एग्ज़ाम होता है PGT का, मैथ्स लेक्चरर के का एग्ज़ाम होता है बाय द गवर्निंग बॉडी लोक सेवा आयोग, उसके भी एग्ज़ाम्स में जब होते हैं तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन जो हैं आपको सर्कल से मिल ही जाते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ो, कुछ डाउट रहे तो पूछो। ओके, नेक्स्ट सम है बेटा, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, what is given in 13th question? Find the equation of the circle passing through 0, 0. Question number 13. Find the equation of circle passing through the 0, 0 and making intercept A and B on the coordinate axes like this. Find the equation of circle passing through 0, 0 and making intercept A and B on coordinate axes right now. Here A, 0, here 0, B and this is what 0, 0. Clear now? Find the equation of this circle which passes through 0, 0 and makes intercept on the coordinate axis. अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं बेटा, तो A and B also passes through the center of the circle, from the circle. A and B also passes through the equation of the circle. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
अगर ये इंटरसेप्ट है तो डेफिनेट सी बात है कि ये क्या कंस्ट्रक्ट करेगा, डायमीटर कंस्ट्रक्ट करेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करेगा बेटा, डायमीटर कंस्ट्रक्ट करेगा। डायमीटर कंस्ट्रक्ट करेगा तो यहाँ का सेंटर को निकाल सकते हो आप। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पार्ट्स, 0 प्लस ए दैट इज a/2 कॉमा b/2, b/2। अब a/2 और b/2 इसका हो गया सेंटर। बात आएगी किसकी बेटा, रेडियस की। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो या फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस हो जाएगा। तो सेंटर इज इक्वल टू 0 प्लस a अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू a अपॉन 2 कॉमा b अपॉन 2। सेंटर हो गया बेटा। सेंटर के बाद रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट दिस माइनस दिस, राइट ना, a/2 माइनस k, a/2 माइनस k होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a/2 माइनस a दैट इज माइनस a/2 the whole square plus b/2 the whole square. That can be written as under root a square by 4 plus b square by 4. Therefore, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, r is equal to under root a square plus b square by 4. That can be written as under root a square plus b square by 2. Okay, radius. You have center and radius. You have center and radius. Therefore, equation circle that is equal to x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Yes or no? अगर वैल्यूज पुट अप करेंगे बेटा तो h की वैल्यू a/2 और k की वैल्यू b/2। दैट मीन्स x माइनस a/2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि रू स्क्वायर करोगे बेटा तो अपॉन 4 लग जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 माइनस ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। यस और नो? लुक हियर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस माइनस बी वाई प्लस a square by 4 plus b square by 4 that is a square plus b square by 4 is equal to a square plus b square by 4। बेटा दोनों हो गए कैंसिल, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट ना। 11.3 ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, 13 सम था। क्वेश्चन नंबर 13 सम था। 13 सम में ये आंसर आया। कुल मिला के मैंने क्या किया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा। सर्कल का सेंटर दिया, सर्कल का पासिंग पॉइंट क्या था, 0,0। उसका एक इंटरसेप्ट a था और दूसरा इंटरसेप्ट b था, तो इसको एज्यूम किया a,0 और उसको क्या एज्यूम किया g/b। इंटरसेप्ट को जब मीट करते हैं बेटा तो सर्कल का क्या बनता है, डायगोनल बनता है, डायमीटर बनता है। क्या बनता है, डायमीटर। डायमीटर का मिड पॉइंट निकाला हमने, दैट इज a/2 एंड b/2। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या आया, a/2 b/2 दैट इज व्हाट, सेंटर। सेंटर हो गया। सेंटर के बाद हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाला, रेडियस मिल गया। सेंटर और रेडियस जैसे ही मिला बेटा, सीधा सीधा हमने स्टैंडर्ड फार्मूला लगा अप्लाई कर दिया, वी विल गेट आवर आंसर। क्लियर? एंड द क्वेश्चन नंबर 15, question number 15 and the last sum of the topic, question number circle. In the next part we will discuss about the ellipse and parabola. First of all parabola and then ellipse. So what is the last sum of the day, that is question number 15. What is given in question number 15 beta?
15 sum is given. Does the point minus 2.5 comma 3.5 minus 2.5 comma 3.5 lie inside outside or on the circle x square plus y square is equal to 25 minus 2.5 comma 3.5. देखो बेटा, ये है आपका सर्कल जिसका सेंटर है बेटा 0,0. याद करो, मैंने ये फार्मूला बताया था इसी से रिलेटेड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हैविंग सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज ए. तो अगर मैं इस इक्वेशन को मर्ज करता हूँ, यहाँ से कंपेयर करता हूँ बेटा, तो इस इक्वेशन का भी सेंटर कितना आएगा 0,0 एंड रेडियस इज व्हाट 5 यूनिट. क्लियर ना? और ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है. तो हम सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे. किसके बीच में बेटा? पॉइंट एंड सेंटर के बीच की डिस्टेंस. अगर पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस आया तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल. डिस्टेंस अगर लेस देन आया तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल, और अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस आया तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. क्लियर ना? तो सीधा सीधा सोल्यूशन में जब आएंगे हम बेटा, तो क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल is equal to 0,0. Radius is equal to 5. Therefore, distance between point and center. अगर डिस्टेंस निकालने की बात करेंगे बेटा, तो d इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट minus 2.5 minus 0 the whole square plus 3.5 minus 0 the whole square. That means d is equal to minus 2.5 the whole square plus 3.5 the whole square. Therefore, d is equal to under root 2.5 का होल स्क्वायर है, कितना आएगा बेटा? 6.25 प्लस 3.5 12.25. दैट इज इक्वल टू 12 और 6 18.50. डी आया बेटा, डी इज इक्वल टू 18.50. अब 18.50 का रूट ऑफ 18.50, राइट ना? 18.50 के रूट में अगर हम बात करते हैं तो रूट निकालना तो सबको पता होगा, या कुछ नहीं मालूम है? किसी को डाउट हो तो बता देना बेटा. रूट ऑफ 18.50, रूट ऑफ 18.50 कितना होता है बेटे? कुछ भी हो, 25 से तो कम ही आएगा. दैट इज 5 से कम है ना. इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं बेटा, तो ये क्या है? आर स्क्वायर, और ये भी है डी ना. तो ये वैल्यू जो है वो 5 रेडियस से तो कम ही है. तो d is less than r. That means therefore d is less than r. डिस्टेंस जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है बेटा, वो रेडियस से क्या है? छोटी है. और रेडियस से छोटी है तो therefore पॉइंट lies inside the circle. Done? That's all for today, and now we will meet in the next class with the new video, and bye bye. Thank you so much. Okay, bye bye.